So, so today we are going to discuss the Fourier series where the interval is not of length 2 pi. So if you remember last time we discussed about how to find out Fourier series expansion for any function fx. So there we discussed that the function must be periodic function, and the interval where the function is defined, it should be of length 2 pi. तो इस केस में हमने देखा था कि जो x का इंटरवल है दैट इज गोइंग फ्रॉम अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई. इट मींस the length of this interval, that is upper limit minus lower limit, is 2 pi. So if the given interval is of length 2 pi, then the Fourier series expansion for that function is given by this series. This expansion fx is equal to a0 by 2 plus summation an cos nx plus bn sin nx. Clear? If the interval is of length 2 pi, then the expansion is given by this expression where a0 is this integration, an is this integration, bn is this integration. Then we discuss about where the function definition is given in 2 parts or 3 parts. Functions having the point of discontinuity. So here fx is given in 2 parts, phi x, psi x. The interval is going to from alpha to alpha plus 2 pi. That means the length is 2 pi. But the definition of function is given in 2 parts. From alpha to c, it is phi x, and from c to alpha plus 2 pi, it is psi x. So there is no difference in the procedure. Simply, you have to calculate the integrations a0, an, and bn, where a0 is something 1 by pi alpha to alpha plus 2 pi fx dx. But now the definition of fx is that is it is given in 2 parts. So the integration is also going to be calculated in 2 parts, alpha to c, c to alpha plus 2 pi. Similarly for an and similarly for bn. Now the next part, where change of interval means if suppose the given interval is not of length 2 pi. Clear? The interval, the given interval where the function is defined, consider the periodic function fx in this interval alpha to alpha plus 2c. So the what is the length of this interval? It is upper limit, that is alpha plus 2c, minus lower limit. So alpha is cancelled out. So what is left? 2c. So now the interval is of length 2c instead of 2 pi. So अब हमारे पास जो इंटरवल है जिसमें फंक्शन डिफाइंड है, मींस द फंक्शन इज पीरियोडिक, पीरियोडिक आपको गिवन है, बट द इंटरवल जो अभी तक हमें अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई गिवन होता था वो क्या है? अल्फा से अल्फा प्लस 2c है. तो अभी तक हमने जो फॉर्मूले जो प्रोसीजर पढ़ा है दैट इज फॉर एनी इंटरवल फॉर एनी फंक्शन which is defined in the interval alpha to alpha plus 2 pi. That means the length of the interval is 2 pi. But now the interval is of length 2c. हमारे पास 2 पाई लेंथ का इंटरवल नहीं है, अब वो 2c है, तो पाई कुछ नहीं है, अब 2c लेंथ का मीन्स 2 पाई लेंथ के अलावा अगर कोई भी इंटरवल है तो हमें कैसे फोरियर सीरीज निकालें. क्लियर? अगर जो इंटरवल है वो 2 पाई लेंथ का नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है, पाई लेंथ का है, 1 लेंथ का है, 10 लेंथ का है, 2 लेंथ का है, किसी भी लेंथ का है, उस केस में हमें फोरियर सीरीज कैसे निकालना है. सो दिस इज फोरियर सीरीज व्हेन द इंटरवल इज चेंज्ड. सो नाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई. तो अब हमारी लेंथ क्या है? 2 पाई के अलावा कोई भी इंटरवल अगर है, 2 पाई लेंथ के अलावा किसी भी लेंथ का अगर इंटरवल है, तो कैसे हमें फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है. सो टू चेंज, क्योंकि अभी तक हमने वो प्रोसीजर जो पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है? तो पीरियड इज 2 पाई. जो भी इंटरवल है, जो भी फंक्शन है, उसकी वो एक पीरियडिक फंक्शन है एंड द पीरियड इज 2 पाई. तो 2 पाई लेंथ का है. तो अगर इसके अलावा किसी भी पीरियड किसी भी लेंथ का अगर इंटरवल है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है? तो हमें क्या करना है? उस इंटरवल को पहले 2 पाई लेंथ के इंटरवल में कन्वर्ट करना है. अगर कन्वर्ट कर देंगे तो फिर हमें प्रोसीजर पता है कैसे हमें फोरियर सीरीज कैलकुलेट करें. तो हम वो लास्ट वाला प्रोसीजर जी अप्लाई करेंगे. सो वी हैव वन सब्स्टिट्यूशन, x इज इक्वल टू c बाय पाई इंटू जेड. अगर किसी भी लेंथ का आपको इंटरवल दिया है, इसको हमें 2 पाई लेंथ में कन्वर्ट करना है. सो वी विल यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन. क्लियर? x इज इक्वल टू c बाय पाई z. अब आप इसको ये देख सकते हो कि हमने x को z में चेंज किया है, वेरिएबल चेंज किया है. इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू
जो इंटरवल है वो ऑटोमेटिकली 2 पाई लेंथ के इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर x अल्फा है तो अल्फा इज इक्वल टू सी बाय पाई जेड, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से पाई बाय सी अल्फा, सपोज ये बीटा हम अज्यूम करते हैं, एंड सपोज अपर लिमिट अल्फा प्लस 2c अगर वैल्यू है x की, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाय सी अल्फा प्लस 2c। तो अगर इसको हम ब्रेक करें तो पाई अल्फा प्लस सी प्लस 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा पाई अल्फा बाई सी को हमने बीटा लिया है तो ये बीटा हो गया, सो बीटा प्लस 2 पाई। तो नया इंटरवल क्या हुआ बीटा टू बीटा प्लस 2 पाई, तो इसकी लेंथ क्या होगी 2 पाई होगी। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू x इज इक्वल टू सी बाय पाई जेड, ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल है वो एक्स जेड में चेंज हो गया, और जो जेड वेरिएबल है वो डिफाइंड किस इंटरवल में बीटा से बीटा प्लस 2 पाई, यानी अब हमारा जेड वेरिएबल के लिए जो इंटरवल है वो क्या है 2 पाई लेंथ का हो गया। तो जैसे ही हमें एक वेरिएबल मिला जो जिसका इंटरवल क्या है 2 पाई लेंथ का इंटरवल है, तो हमें पता है कि उसके लिए हम कैसे फोरियर सीरीज निकालें हैं। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा एफ एक्स फंक्शन ही अब हमारा क्या होगा एफ जेड फंक्शन होगा, तो एफ जेड फंक्शन उसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है a0/2 प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट an cos nx वहां होता था, लेकिन यहाँ z वेरिएबल पीरियोडिक है, z वेरिएबल का जो पीरियड है वो 2 पाई लेंथ का है, तो हमारा वेरिएबल क्या होगा z प्लस n वेरीज फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट bn sin nz। तो वही एक्सप्रेशन है, कोई डिफरेंट एक्सप्रेशन नहीं है, सिंपली हमने क्या किया है x को z से चेंज कर दिया है a0/2 an cos nz प्लस bn sin nz। सो दिस इज फॉर एफ जेड, क्योंकि अब हमारा फंक्शन क्या है जेड वेरिएबल है वो जो डिफाइंड है वो 2 पाई लेंथ के इंटरवल पर डिफाइंड है। तो ये हमारा हो गया फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर जेड वेरिएबल एफ जेड। अब इसको हमने वापस एक्स में चेंज कर दिया, तो जेड की वैल्यू जो भी थी उसको हमने एक्स में चेंज कर दिया, तो जेड की वैल्यू क्या थी पाई बाय सी एक्स। तो हमारा नया जो हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन तो हमारा एफ एक्स है, तो हमें फोरियर सीरीज भी एक्स के टर्म्स में निकालनी है। तो हमने पहले क्या किया, क्योंकि उसका इंटरवल 2 पाई लेंथ का नहीं था, तो पहले एक्स वेरिएबल को हमने जेड में चेंज किया। जेड वेरिएबल का जो डिफाइंड है वो एक इंटरवल जिसमें 2 पाई लेंथ के इंटरवल में डिफाइंड है, तो जेड वेरिएबल के लिए हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लास्ट प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया जेड को एक्स में चेंज कर दिया, तो जेड की वैल्यू क्या थी पाई बाय सी, तो पाई बाय सी हमने दोनों रख दिया। सो नाउ दिस इज अवर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन when the interval of the function or interval of the variable is not of length 2 pi। अगर वो 2 पाई लेंथ के अलावा कोई भी लेंथ का इंटरवल है तो हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करना है। क्लियर? सो चेंज ऑफ इंटरवल दैट मीन्स अगर 2 पाई लेंथ इंटरवल नहीं है तो हमें फंक्शन एफ एक्स का फोरियर सीरीज कैसे निकालना है इस एक्सप्रेशन के थ्रू। एफ एक्स इज इक्वल टू 0/2 प्लस ए एन कॉस एन पाई एक्स बाय सी प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाय सी। एंड अगेन जो a0 जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा 1/c अल्फा से अल्फा प्लस 2c एफ एक्स टी एक्स। आपको अगर याद होगा कि उस केस में हम क्या करते हैं एफ एक्स में, अगर ये हमारा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है, सिंपली a0 क्या होता है 1/पाई माइनस जो भी इंटरवल दिया होता है, अगर मैं वहां से देखूं तो एफ a0 की वैल्यू क्या होती है 1/पाई, और जिस इंटरवल में डिफाइंड है फंक्शन उसमें पहले एफ एक्स टी एक्स, ए एन क्या होता है 1/पाई अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स क्या होता है जो यहाँ टर्म है cos एन एक्स वो यहाँ आता है, जो sin एन एक्स यहाँ है तो ये यहाँ आता है। सिमिलरली इन द सेम वे अब हमारा पास इंटरवल चेंज हो गया है, z वेरिएबल था लेकिन z वो x वेरिएबल था, x को पहले हमने z में चेंज किया और वापस z को x में चेंज कर दिया। तो अगर हमारी ये एक्सप्रेशन है, ये फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है, तो a0 की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि हमारा इंटरवल है अल्फा से अल्फा प्लस 2c, तो वहाँ क्या था अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई था, तो पाई हमने डिवाइड करते थे तो 1/c होगा यहाँ अल्फा से अल्फा प्लस 2c जो इंटरवल दिया है एफ एक्स टी एक्स। ए एन क्या होता है 1/c अल्फा से अल्फा प्लस 2c एफ एक्स, और जो यहाँ ए एन के मल्टीप्लिकेशन में जो कोफिशिएंट होता है वही हम यहाँ रखते हैं, सो कॉस एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स, एंड जो बी एन के कोफिशिएंट होता है वही हम यहाँ रखते हैं। सो बी एन इज इक्वल टू 1/c अल्फा टू अल्फा प्लस 2c एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई सी। तो ये एक सिंपल सा चेंज है, बस आपको याद रखना है कि अगर इंटरवल 2 पाई लेंथ का नहीं है किसी और लेंथ का है तो आपको डायरेक्टली आपको ये एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करेंगे
इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इस एक्सप्रेशन को यूज करके कैलकुलेट करोगे, जहां a0 क्या है, ये 3 इंटीग्रेशन a0 an bn। तो s बस सिंपली क्या है, चेंज क्या है, ये वहां पर होता था cos nx, अब यहाँ क्या हो जाएगा cos n pi x by c। सिमिलरली वहां होता था sin nx, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin n pi x by c। और इंटीग्रेशन में वो वही चेंज, वहाँ cos nx और cos sin nx मल्टीप्लाई होते थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos n pi x by c और sin n pi x by c। और इंटरवल यही है अल्फा टू अल्फा प्लस 2c, तो हम यहाँ 1/c अल्फा से अल्फा प्लस 2c कर रहे हैं सारे इंटीग्रेशन में, वहाँ होता था अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, तो 1/पाई अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई कर देते, तो कोई चेंज नहीं है, सिंपली उसी को मैप करना है आपको। अगर वो याद है तो ये भी आप याद, केवल पाई को आपको c से चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, इंटरवल जो भी दिया है पहले उसमें 2c की वैल्यू निकालिए, क्योंकि ये इंटरवल क्या है 2c लेंथ का है, तो 2c से आप पहले c की वैल्यू निकालोगे, तो c यहाँ हमें सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए क्वेश्चंस, expand fx is equal to e to the power minus x as a Fourier series in the interval minus l to plus l। क्लियर? तो अब पहले तो आप इस इंटरवल की लेंथ निकालिए, और ये तो क्लियर है इट इज नॉट ऑफ लेंथ 2 पाई, क्योंकि पाई तो कहीं है ही नहीं, तो 2 पाई अगर पाई लेंथ का नहीं है तो हमें ये प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, चेंज ऑफ इंटरवल है। तो पहले तो आप इंटरवल इससे कंपेयर कीजिए, क्योंकि सी की वैल्यू हमें चाहिए अल्फा से अल्फा प्लस 2c माइनस l टू l, तो यानी ये इसकी लेंथ क्या है 2c, तो इसकी लेंथ हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो l माइनस माइनस l, यानी इसकी लेंथ हो गई 2l। तो ये इंटरवल जो है वो 2l लेंथ का है, और हमें क्या चाहिए 2c, तो c की वैल्यू चाहिए, ये इंटरवल 2c लेंथ का है, तो c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये इंटरवल लेंथ क्या है 2c, और यहाँ लेंथ क्या है 2l, तो 2c इज इक्वल टू 2l, तो c की वैल्यू क्या होगी l, तो हमें c की वैल्यू मिल गई l। क्लियर? अब आप सिंपली उसको इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि इंटरवल 2 पाई लेंथ के अलावा कोई है, तो हमारा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, फंक्शन इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन an cos n pi x by c होता है। तो c की वैल्यू हमें क्या मिल गई l, प्लस bn sin n pi x by l, और जहाँ a0 क्या होता है 1/c यानी 1/l, और जो भी इंटरवल दिया है तो माइनस l से l दिया है, इंटीग्रेशन fx dx, उसको इंटीग्रेट किया, ये आ गया इंटीग्रेशन। फिर an क्या होता है 1/c यानी 1/l, और इंटरवल दिया है माइनस l टू l fx यानी e टू द पावर माइनस x इंटू कॉस n पाई x बाय l, क्योंकि c को हमें सिंपली इन फॉर्मूले में हमें c को l से रिप्लेस करना है। ठीक है, ये 2c लेंथ का इंटरवल है, इसका लेंथ है 2l, तो 2c इज इक्वल टू 2l, तो c की वैल्यू l हो गई, तो हमें c को सभी जगह l से रिप्लेस कर दिया। अब सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है, सो e टू द पावर माइनस x cos n पाई x बाय l, इसको इंटीग्रेट करना है। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे इंटीग्रेट करना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको ये लिखा है, e टू द पावर ax sin bx कैसे इंटीग्रेट होगा, e टू द पावर ax cos bx कैसे इंटीग्रेट होगा, तो उसका ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। यही एक्सप्रेशन है e टू द पावर माइनस x cos n पाई x बाय l, तो उसको हमें यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यही e टू द पावर माइनस एक्स cos n पाई x बाय l, इसको इंटीग्रेट किया उस फॉर्मूले से, लिमिट्स अप्लाई की, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे bn क्या होता है 1/c, तो 1/l, इंटरवल है माइनस l टू l, फंक्शन e टू द पावर माइनस x sin n पाई x बाय l, इसके लिए भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमने इंटीग्रेट किया, लिमिट अप्लाई की, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो हमारा एक्सप्रेशन यानी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या हुआ, फंक्शन इज इक्वल टू a0/2 फिर an cos n पाई x बाई एल और bn sin n पाई x बाई एल, इसमें हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। an ये है तो a1 a2 a3 यहाँ से मिल जाएंगे, b1 b2 b3 यहाँ से मिल जाएंगे, वो सारे हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन fx, दिस इंटरवल है 0 to 1 1 to 2, तो टोटल इंटरवल क्या हो गया 0 to 2, यही हुआ ना, और 0 to 2 है यानी हमारा 2 पाई लेंथ का नहीं है, 2 पाई लेंथ का नहीं है तो यानी हमें ये प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले तो सी की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, लेंथ क्या है 2c होना चाहिए इंटरवल की, तो 2c, इसकी लेंथ क्या है 2, 2 माइनस 0 इज 2, तो 2c से अगर हम कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, c की वैल्यू क्या मिलेगी 1, तो ये 1 c की वैल्यू हमें 2 लेंथ का इंटरवल है बट c की वैल्यू क्या होगी 1, 2c इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू क्या होगी 1, तो c की वैल्यू 1 हो गई। अब आप सारे फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या हुआ, fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस an cos n पाई x बाय c, तो c की वैल्यू क्योंकि 1 है
तो n पाई x बाय 1 bn साइन n पाई x बाय 1। a0 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय c यानी 1 बाय 1। इंटरवल गिवन क्या है 0, क्योंकि इंटरवल टोटल है 0 to 2, लेकिन 0 to 2 में दो पार्ट में फंक्शन की डेफिनेशन है, एक 0 to 1 अलग डेफिनेशन है और 1 to 2 डिफरेंट डेफिनेशन है, तो हमें दो पार्ट में इंटीग्रेशन सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 0 to 1 हो गया फंक्शन पाई एक्स, और सेकेंड इंटरवल 1 to 2 में क्या हो जाएगा पाई 2 माइनस एक्स। क्लियर, ये पाई 2x नहीं है, पाई 2 माइनस एक्स है। इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ऐसे an क्या हो जाएगा 1 बाय c, तो c की वैल्यू 1 है इसलिए 1 हो गया वो। फिर एक हो गया 0 to 1 fx cos n पाई x, और दूसरा 1 to 2 fx cos n पाई x। इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट अप्लाई कीजिए, तो क्योंकि ये -1 टू द पावर n बाय -1 है, तो n जब भी इवन होगा तो ये -1 + 1 में हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो जब भी n इवन होगा तो an 0 होगा, और ये ऑड अगर होगा तो ये -2 टाइम्स, तो -2 into -2 is -4 when n is odd। नेक्स्ट bn is 0 to 1 fx sin n pi x, 1 to 2 fx sin n pi x। तो क्या चेंज है इसमें, एक तो इंटरवल चेंज है, तो पहले हमने उसमें इंटरवल वाला प्रोसीजर अप्लाई किया, प्लस अब ये पॉइंट ऑफ फंक्शन हैविंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1 पर ब्रेक हो रहा है फंक्शन, दो डेफिनेशन में, तो सारे इंटीग्रेशन भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और कोई चेंज नहीं है। क्लियर, सो bn हमने कैलकुलेट कर दिया, ये हो गया आपका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी था, डिड्यूस दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 8, तो सिंपली हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो यहाँ से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर चाहिए, तो ये ऊपर वाला पार्ट 0 होना चाहिए, तो एक्स की जगह हमने 0 रख दिया, तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। नेक्स्ट फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 2x minus x square in interval 0 to 3 and deduce this extra part। सो अब फंक्शन है 2x माइनस एक्स स्क्वायर और इंटरवल क्या है 0 to 3, तो इंटरवल की लेंथ क्या होगी 3, इस वाले इंटरवल की लेंथ क्या होगी 3, और उधर क्या होती है 2c, तो 2c की वैल्यू क्या होगी 3, तो c की वैल्यू क्या होगी 3/2। क्लियर, c की वैल्यू क्या होगी 3/2। तो अब जब भी फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो a0 इज इक्वल टू 1/l या 1/c, 0 to 2l, क्योंकि डेफिनेशन 0 to 3, सॉरी ये 2l नहीं होगा 3, 1/c मीन्स 3/2, सो 3/2 को हमने रिवर्स करके रख दिया 2/3, और 0 to 3 इंटरवल fx dx, तो हमने 0 to 3 को इंटीग्रेट किया और 0 to 3 लिमिट अप्लाई करके हमें मिला 0। नेक्स्ट an क्या होता है 1/l, तो 1 मीन्स c, तो 1/3/2 यानी 2/3, एंड इंटरवल हो गया 0 to 3, सो 0 to 3 fx इंटू कॉस n पाई x बाय l, l की वैल्यू या c की वैल्यू क्या है 3/2, तो l की वैल्यू हमने 3/2 सब्स्टिट्यूट कर दी, तो बस आपको इंटीग्रेट करना है। सिमिलरली bn 1/l 0 to 3 fx इंटू साइन n पाई x बाय l, और l की वैल्यू क्या है 3/2, इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट अप्लाई कीजिए, ये आपका, तो आपका पूरे सीरीज एक्सपेंशन ये हुआ। और अगेन प्रूफ कुछ करना था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो उसमें देख लीजिए कहाँ मिलेगा हमें। देखिए इस वाले पार्ट में bn वाले पार्ट में 1/n पाई है, तो n की जगह जो भी रखेंगे हम 1 2 3 इस तरफ से मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए क्या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट 0 कब होगा, जब ये साइन n पाई टाइप का बनेगा, तो x की जगह हमने क्या रख दिया, क्योंकि 2/3 अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये n पाई बन जाएगा, तो x की जगह हमने क्या रख दिया 3/2, तो 3/2 जैसे ही यहाँ रखा तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया साइन n पाई, तो यानी ये वाले सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, और यहाँ जब रखेंगे तो ये cos n पाई बचेगा, cos n पाई की वैल्यू क्या होती है -1 टू द पावर n, तो अब हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी। क्लियर, तो ये पार्ट था व्हेन इंटरवल इज नॉट ऑफ लेंथ 2 पाई, अगर 2 पाई लेंथ के अलावा कोई इंटरवल है तो कैसे हमें फोरियर सीरीज इवेल्युएट करनी है। नेक्स्ट इवन एंड ऑड फंक्शंस, सो बाकी आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फंक्शन को नहीं देख रहे हैं इवन है या ऑड है, तो भी आप सिंपली जैसे आपने अभी तक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन किया है वैसे ही आप कर सकते हो, बट फर्क क्या है, अगर आप उसमें ऑब्जर्व कर लोगे कि वेदर दी गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड, तो हमारे कुछ एक्सप्रेशन में कुछ स्टेप्स कम हो जाएंगे, कुछ इंटीग्रेशंस इवेल्युएशंस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है, पहले तो आपको इवन ऑड फंक्शन पता है, फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी इवन इफ
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसे कॉस एक्स है, एक्स स्क्वायर है, सेक एक्स है, एक्स टू द पावर 4 है, आप जब भी यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो वही फंक्शन मिलेगा. सो दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन. और ऑड फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, जैसे साइन एक्स है, टेन एक्स है, एक्स क्यूब है, तो ये सारे क्या है? ऑड फंक्शंस हैं. तो अब हम व्हाट इज द यूज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, हम क्यों इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? सो आप इस प्रोसीजर को देखिए, एक्सपेंशन ऑफ इवन और ऑड पीरियोडिक फंक्शंस. तो देखिए एक पीरियोडिक फंक्शन दिया है जिसकी इंटरवल कुछ भी हो, अब हम जनरलाइज करेंगे उसको. देखिए हमने पहले पर्टिकुलर पढ़ा कि 2 पाई लेंथ का होना चाहिए, फिर हमने 2 पाई लेंथ के अलावा कोई भी अगर इंटरवल है तो कैसे उसे 2 पाई लेंथ में कन्वर्ट करना है वो भी सीख लिया. तो अब अगर कोई भी इंटरवल है जिसकी लेंथ 2c है, अब सी की जगह पाई भी हो सकता है तो डायरेक्टली 2 पाई मिलेगा, अगर सी की जगह कुछ और वैल्यू है तो किसी और लेंथ का मिल जाएगा. लेकिन अब हमने सभी के लिए एक्सपेंशन पढ़ लिया है कि कैसे फोरियर सीरीज निकालनी है, अगर वो 2 पाई लेंथ का है या नहीं है किसी भी केस में. तो हम जनरलाइज कर दिया, माइनस सी टू सी दिया है या अल्फा से अल्फा प्लस 2c दिया है, किसी भी टाइप का, तो या तो लेंथ 2 पाई है या 2c है. क्लियर? तो 2c लेंथ का अगर इंटरवल है तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 समेशन ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई सी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई सी, जहाँ a0 की वैल्यू 1/c और जो भी इंटरवल दिया है माइनस सी टू सी दिया है तो माइनस सी टू सी, 0 से 2c दिया है तो 0 से 2c, जो भी लेंथ दिया. एफ एक्स डी एक्स ए एन इज इक्वल टू दिस, बी एन इज इक्वल टू दिस. अब देखिए अब केस 1, व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, अगर गिवन फंक्शन इवन है तो देखिए एफ एक्स अगर इवन है तो एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स, कॉस थीटा क्या होता है? इवन फंक्शन होता है, तो इवन फंक्शन इनटू इवन फंक्शन एक इवन फंक्शन बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो इवन फंक्शन ये बन गया. और एफ एक्स इवन है और साइन क्या होता है? ऑड फंक्शन है, तो इवन इंटू ऑड क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है. तो इंटीग्रेशन में क्या होगा? a0 इज इक्वल टू माइनस सी टू सी अगर दिया है, एफ एक्स क्या है? इवन फंक्शन है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? 2 0 से c एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि माइनस सी टू सी है एफ एक्स है और एफ एक्स क्या है? इवन फंक्शन है, तो इस केस में लिमिट प्रॉपर्टी से क्या होता है? ये 2 टाइम्स 0 टू सी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं. ए एन क्या होगा? अगेन एफ एक्स इंटू कॉस, तो एफ एक्स भी इवन फंक्शन है, कॉस भी इवन फंक्शन है, तो माइनस सी टू सी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 0 टू सी एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई सी. और बी एन जो है एफ एक्स इवन फंक्शन है, साइन ऑड फंक्शन है, तो इवन प्लस इवन इंटू ऑड क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन. तो ये कि ऑड फंक्शन बना, टोटल जो इंटीग्रांड है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है वो एक ऑड फंक्शन है. और लिमिट्स क्या है? माइनस सी टू सी, तो माइनस ए टू ए, और ऑड फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करना है तो वो इंटीग्रेशन क्या होता है? 0. तो यही इसका एप्लीकेशन है कि अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया कि वेदर दी गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड, तो हमारे कुछ इंटीग्रेशन इवोल्यूशंस का टाइम बच जाएगा. तो अगर वो इवन फंक्शन है तो आपको बी एन कैलकुलेट नहीं करना है, यू हैव मीन्स यू हैव टू राइट बी एन डायरेक्टली 0 बिकॉज एफ एक्स इज इवन फंक्शन. तो इवन इंटू ऑड क्या हो जाएगा? ऑड, इसलिए बी एन पार्ट 0 हो जाएगा. सिमिलरली व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, तो एफ एक्स ऑड है, कॉस इवन है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन. और एफ एक्स ऑड है, साइन भी ऑड है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन. तो इस केस में ए 0 0 जाएगा. क्यों? ए 0 की वैल्यू क्या है? माइनस सी टू सी एफ एक्स, और एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो ये वाला इंटीग्रेशन 0 हो गया. सिमिलरली ए एन इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू कॉस, तो एफ एक्स ऑड है, कॉस इवन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑड हो जाएगा. तो ऑड का ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस सी टू सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और बी एन आएगा क्योंकि ऑड इंटू ऑड इज इवन, तो माइनस सी टू सी को क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स 0 टू सी एफ एक्स इंटू दिस. तो इस केस में हमें ए जीरो ए एन को डायरेक्टली 0 लिखना है बिकॉज फंक्शन इज ऑड. तो इसको अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे तो भी फंक्शन हमें इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? 0. तो इस ये कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है. सिमिलरली मतलब सिंपली अगर आपने इवन और ऑड फंक्शन को ऑब्जर्व कर लिया कि जो फंक्शन दिया है वो इवन है ऑड, तो या तो अगर इवन है तो बी एन 0 हो जाएगा डायरेक्टली, और अगर ऑड है तो ए 0 बी ए एन 0 हो जाएगा. तो हमें डायरेक्टली ये लिखना है. अदरवाइज अगर आपको ये नहीं भी लिखना है तो आप उसको सॉल्व कीजिए सिंपली, जैसे आपने अभी तक क्वेश्चन किए हैं. तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ए 0 ए एन 0 आ जाएगा जब फंक्शन ऑड है, और अगर फंक्शन इवन है तो बी एन 0 आ जाएगा. तो ये आप डायरेक्टली लिखिए या सॉल्व कीजिए, आपको आंसर सेम मिलेगा. क्लियर? बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. तो एफ एक्स एक्सप्रेस फंक्शन एक्स बाई टू एज अ फोरियर सीरीज इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई. तो पहले तो इंटरवल लेंथ देखा हमने, माइनस पाई टू पाई यानी 2 पाई लेंथ का हो गया, तो हम तो डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई करेंगे. और पहले अगर हमने इवन ऑड ऑब्जर्व कर लिया तो माइनस सॉरी फंक्शन क्या है? एक्स बाई टू, तो एक्स की जगह माइनस एक्स अगर आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बाई टू. तो माइनस एक्स बाई टू को हम क्या लिखेंगे? माइनस एफ एक्स. सो फंक्शन इज
ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन है तो a0 0 हो जाएगा और an 0 हो जाएगा। ऑड केस में यही होता है, व्हेन फंक्शन इज ऑड देन a0 इज 0, an इज 0। क्लियर? तो a0 an 0 का हमें bn केवल कैलकुलेट करना है, तो bn इज इक्वल टू, क्योंकि लेंथ क्या है 2 पाई है इंटरवल की, तो स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले लगेंगे, तो 1 बाय पाई माइनस पाई टू पाई fx sin nx dx। बस आप फंक्शन की वैल्यू रखिए, इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया bn, और bn को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट मोड ऑफ cos x, अगर फंक्शन है तो इंटरवल क्या है माइनस पाई टू पाई, तो आपको पता है मोड cos x क्या आता है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो bn 0 हो जाएगा, और बाकी a0 आपको और an कैलकुलेट करना है। तो a0 इज, क्योंकि लेंथ क्या है 2 पाई, तो 1 बाय पाई, सॉरी अब डायरेक्ट फॉर्मूले आप लगा सकते हैं, क्योंकि इवन फंक्शन है तो आपको a0 की वैल्यू क्या है 2 बाई सी, तो 2 बाय पाई 0 टू पाई, या गिवन इंटरवल को भी अगर आप देखें तो 1 बाय पाई माइनस पाई टू पाई मोड cos x, तो माइनस पाई टू पाई को आप क्या लिख दोगे 2 टाइम्स 0 टू पाई, क्योंकि फंक्शन इवन है, तो आपको इंटीग्रेट करना है, वैल्यू सॉल्व करना है। सिमिलरली ये an की वैल्यू है, इंटीग्रेट करना है। क्लियर? ऐसे ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन क्या बन रहा है, इवन फंक्शन बन रहा है, तो इस केस में भी आपका bn 0 हो जाएगा, a0 और an आपको कैलकुलेट करना है। Clear? So in the next lecture, we will discuss about the how to calculate half range series, range Fourier series expansion. तो अब क्या होगा, अब हमें अभी तक हमें दोनों पार्ट सॉल्व करने देते, फुल रेंज मींस इस फोरियर सीरीज एक्सपेंशन को हम फुल रेंज फोरियर सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब फुल रेंज मींस इसमें साइन टर्म्स भी हैं, कॉस टर्म्स भी हैं, लेकिन अब क्या है हाफ रेंज सीरीज, या तो उसमें साइन टर्म्स होंगी केवल, या केवल कॉस टर्म्स होंगी। तो इन द कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट this topic.